Hello everyone. So we start the next question now. That is question number 3. अब बात करते हैं next question. That is question number 3 of the same exercise 14.2. And here the question is: the following data gives the distribution of the total monthly household expenditure of 200 families of a village. Find the model monthly expenditure of the family. Also find the mean monthly expenditure. यहाँ पे जो हमें फाइंड करना है, एक तो हमें मीन ऑफ द डेटा फाइंड करना है एंड नेक्स्ट इज द मोड ऑफ द एक्सपेंडिचर. ओके, सो मीन एक्सपेंडिचर क्या होता है, कितना एक्सपेंडिचर होता है ऑन द 200 फैमिलीज, और साथ में हमें फाइंड करना है द मोड ऑफ द गिवन डेटा. ओके, सो टेबल इज इन फ्रंट ऑफ यू. सो इसे हम यहां इस तरह लिखते हैं. व्हाट वी हैव एक्सपेंडिचर इन रुपीज. तो हमें दिया है 1000 to 1500. सो 1500 से लेके 2000. ओके, दिस इज द गिवन एक्सपेंडिचर इन रुपीज. उसके बाद जो नेक्स्ट गिवन है दैट इज frequency, and frequency are number of families. That is FI. So FI जो हमारे पास given है that is 24, 40, 33. 24, then it is 40, 33, 16 and 7. तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसीज है. एज वी नीड टू कैलकुलेट द मोड, तो उसके लिए जो हमें कोई और डेटा की जरूरत नहीं पड़ती है, यहां से ही सारा हमें फाइंड करना है. हियर मोड विल बी इक्वल टू, मोड जो होता है दैट इज L प्लस F1 माइनस F0 और twice F1 minus F0 minus F2 into H. ये सारा जो है मैंने समझा के रखा है in the previous question. L is the lower limit of the model class. F1 is the model class frequency. F0 is the model frequency of the class before model class. F2 is the frequency of the class after model class, and H is the class size of the model class. Okay, here model class, that is equal to model class with the maximum number of frequencies. So maximum frequencies यहाँ पे सिर्फ इसकी हैं. Okay, so 40 frequency के साथ 100. so हमारे पास जो मॉडल क्लास है that is 1500 to 2000. lower limit L is the lower limit of model class, that is 1500. lower limit of the model class वो 1500 होगा. F1 frequency of the model class, that is 40. F0 frequency of the class before model class, that is this one F0, 24. and F1 के बाद है F2 frequency of the model class after the frequency of the class after the model class, that is 33. तो ये F2 होगा 33. तो इसके लिए जो हमारे पास ये डेटा गिवन है, एंड व्हाट इज H? H is the class size of the model class, so 2000 minus 500, 2000 minus 1500, that is 500. so सारा डेटा हमारे पास है. therefore mode that is equal to L, and L is equal to 1500 plus F1, that is 40 minus F0. F0 is 24 upon twice F1, that means twice 40 minus 24 minus F2 is 33 into the H, and H is the class size, that is 500. So we calculate this whole data. So हमारे पास जो मोड आएगा that will become 1500 plus 40 minus 24, that is equal to 16 upon
80 minus 57 into 500. Okay, further we can write this as 1500 plus 16 upon, so 80 minus 57, 10 minus 7 is 3 and 7 minus 5 is 2 into 500. Okay, that will become 1500 plus 6 5 is 30, 5 minus 5, 8000 upon 23. अब 8000 upon 23 करने पे हमें जो वैल्यू होगा, इससे कैलकुलेट करने पे हमें जो वैल्यू मिलेगा दैट इज 347.83. ये इसका वैल्यू मिलेगा. इंप्लाइज मोड जो हमारे पास आएगा दैट इज 1500 प्लस 347.83. सो 347 इसमें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1847. This is the mode of the expenditure here. यही mode of the expenditure होगा and this value is going to lie between 1500 and 200. ये था mode of the question, mode value. अब हम find करेंगे mean of this question. Okay. So अब हमें mean expenditure find करना है. तो आप अगर clearly देखेंगे this data is so large, तो हम यहाँ पे step deviation method से इसे करेंगे. For that we have the expenditure here as a class interval. And we are having the number of families with respect to these intervals as FIs. So number of families जो question में दिए हैं, the total number of families are 200. So summation जो FI हमारे पास है that is 200. Okay. उसके बाद जो next है that is class mark. इसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं क्लास मार्क, जिसको XI से डिनोट करते हैं. So class mark होता है sum of these two divide by 2. Sum of the intervals upper limit and lower limit divide by 2. 1000 plus 1500 will become 2500. So 2500 divided by 2 will become 1250. Got it? इसके बाद 1500 2000 बन जाएंगे 3500 और 3500 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये बन जाएगा 2 1s 2 7s 14 250. तो 715. सो 1750 बन जाएगा. सो ये हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट 1750. गॉट इट. सो 1250 में 500 ऐड करेंगे तो 1750. तो यहाँ पे दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, गैप 500 की है तो इसमें 500 ऐड करें. सो 17 में 500 और ऐड करेंगे सो 2250 बन जाएगा. और 500 करेंगे 2750. उसके बाद और 500 करेंगे 4750. आप क्लियरली देख सकते हैं ये जो है दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द ईच इंटरवल. 1000 plus 1500 by 2 is 7500, 85 and 9500 by 2. That will become 4750. This is what? This is here the XI. और XI के बाद जो हम फाइंड करते हैं that is called as the deviation DI and that is XI minus A. And A we consider the central point of the XI. तो सेंट्रल ऑब्जर्वेशन कौन सी है 1 2 3 1 2 3. तो ये दो आ रहे हैं. आउट ऑफ द टू हम एक ही कंसिडर करेंगे. अगर 2750 करेंगे कंसिडर तो उससे जो नंबर है थोड़ा बड़ा मिलेगा एज कंपेयर टू 3250. इसीलिए हम इस वाले को कंसिडर करेंगे. आप पे डिपेंड है, आप ये वाला भी कंसिडर करते हैं तो ये ए होगा. तो -3250. तो हमें जो मिलेगा DI. सो DI जो हमारे पास आ जाएगा दैट इज एक्चुअली 1250 minus 3250. सो डेटा विल लुक लाइक. सो आप क्लियरली देख सकते हैं हमने पहले 1250 दैट इज XI माइनस किया 3250 दिस ए. तो हम -2000 1750 माइनस ए विल बिकम 1500 माइनस 1500. उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज 2250 माइनस 3250. तो यहाँ 1500 के बाद आ जाएगा 1000 माइनस 1000, फिर आ जाएगा -500, फिर 0 आ जाएगा,
फिर 500 आ जाएगा, फिर 1000 आ जाएगा, और उसके बाद जो है 1500। अब नेक्स्ट क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमने कंसिडर किया था नीचे वाले को। होप यू अंडरस्टैंड अप टू दिस। सो 1000 माइनस ये सारे नेगेटिव होंगे माइनस करने के बाद, और जो हमारा ये वाला लास्ट के 3 होंगे वो पॉजिटिव होंगे। अब जो हम फाइंड करने वाले हैं दैट इज ui, और ui जो होता है, ui हमारे पास होता है di माइनस द di डिवाइड बाय h. h is the class size here and di is we have calculated already, so divide them. तो अब देखते हैं पहले इसकी डिफरेंस क्या है। हमारे पास डिफरेंस 500 है, तो हर क्लास में डिवाइड करेंगे 500 से। सो 2000 माइनस 500, सो 44 आ जाएगा। मतलब ये हमारे पास आ जाएगा -4। 2000 divided by 500 means -4, and minus 1500 divided by 500 will become -3, then -2, then 2, 3। इस तरह का डेटा मिल जाएगा। बहुत ही इजी है कैलकुलेट करना। उसके बाद जो लास्ट है दैट इज FIUI अब कैलकुलेट करना है। FI को मल्टीपल करना है कॉरेस्पॉन्डिंग UI से, FI को मल्टीपल करना है कॉरेस्पॉन्डिंग UI से। सो ये हमारे पास जो होगा डेटा कैलकुलेट करके, दिस इज एक्चुअली FI multiple with UI. 24 into 4 will become -96, 40 into -3 120, 33 into 2 is माइनस के साथ इनके साथ मल्टीपल कर रहे हैं। ओके, सो हमें समेशन ऑफ FIUI क्या आएगा? एडिशन ऑफ ऑल। तो जब ऐड करेंगे हम सारा डेटा 235, इसे कैलकुलेट करने के बाद हमें समेशन ऑफ FIUI मिलेगा -235। सो हमें जो फाइंड करना है दैट इज द मीन। तो मीन x बार दैट विल बी इक्वल टू a प्लस समेशन दैट मीन h समेशन ऑफ FIUI ओवर समेशन ऑफ FI। h मल्टीपल इसीलिए है, डिवाइड में h है, a प्लस इसीलिए है क्योंकि माइनस किया है ये। तो वो आ जाएगा a इज व्हाट 3250। एज्यूम्ड मीन जो लिया है हमने दैट इज a 3250 प्लस h is the class size, that is class size is 500 here, multiple with summation of FI is -235 and summation of UI is 200. So calculate this whole, zeros cancel with 0। तो हमारे पास जो डेटा मिलेगा लास्ट पे 3250 प्लस 5/2, and after calculating this whole we get the result as 2662.5। This is the mean expenditure जो है over the 200 families पे जो expenditure, average expenditure होता है, that's 2662। Hope you understand।